ایک ایسا کیمرہ جس کی ایک کلک زندگی کو موت میں بدل سکتی تھی. جو بھی اسے تصویر بناتا وہ بھیانک موت مارا جاتا. کیسے ایک عام سی تصویر موت کا بنی سب سے بڑا ہتھیار. تو چلیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. مائیکل جو کہ ہٹلر کی موت کی بھوشوانی بھی کر چکا تھا، آج اس سٹیج پر اس پروگرام کا ہوسٹ تھا. مگر آج نہ جانے کیوں وہ بہت گھبرایا ہوا تھا. کرنل اسے کہتا ہے اپنے وطن کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے، مگر تب وہ خاموش ہو کر سٹیج پر چلا جاتا ہے. مائیکل اپنا شو سٹارٹ کرتے ہوئے کہتا ہے آج ہم دنیا کے اس انوکھے شاہکار کی بات کرنے والے ہیں. یہ کیمرہ جو کہ اس یونیورس کے رولز اور نیچر کے اگینسٹ کام کرتا ہے. تو چلیے آج ہم اپنا ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اب لوگوں میں سے ہی 2 آدمیوں کو سٹیج پر بلایا جاتا ہے. ایک پروفیسر تھا جس کا نام ابھیاسو تھا اور دوسرا ایک عام آدمی تھا. ابھیاسو کا کام تھا کیمرے سے پاٹس کی تصویر لینا اور اسے اپنے پاس رکھ لینا. دوسرے آدمی کا کام تھا اپنی مرضی سے ان پاٹس کی جگہ کو چینج کرنا. اب ان پاٹس کا فیوچر کیمرہ بتانے والا تھا. سب نے اپنا کام اچھے سے نبھایا. جب کیمرے کا ریزلٹ چیک کیا گیا تو وہ 100% ٹھیک تھا. سیم ریزلٹ تھا جو کہ کیمرے نے پکچر میں دکھایا تھا. پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. مگر ابھیاسو اس ریزلٹ کو نہیں مانتا. اس کا کہنا تھا یہ پلاننگ بھی تو ہو سکتی ہے یا پھر اتفاق بھی، اور وہ ضد کرتا ہے کہ میں ایک بار پھر اس کیمرے کو آزماؤں گا. اور تبھی وہ جلد بازی میں کیمرے کا بٹن دبا دیتا ہے. سامنے کھڑے مائیکل کی تصویر بنتی ہے. اس وقت ہم اس لڑکی کے چہرے پر خوف دیکھ سکتے ہیں، اور جب تصویر ابھی صاف بھی نہیں ہوئی تھی کہ مائیکل گر جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے. جیسا کہ تصویر میں اس کی موت ہوئی تھی، سیم مائیکل کی سب کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے موت ہو جاتی ہے. مینز جس کی تصویر لی جاتی تھی اس کی موت بہت بھیانک طریقے سے ہو جاتی تھی. پھر اس کیمرے کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا. اب کہانی کئی برس بعد کی دکھائی جاتی ہے. آج ایک لڑکے لڑکیوں کا گروپ رشیا کے دور دراز علاقے میں ٹریول کرنے والا تھا. 1 ویک کا ٹرپ تھا ان کا. اس گروپ میں ایلیا اور اس کی گرل فرینڈ الولا، موٹی الولا کی بہن میری، چھوٹے قد کا گیگ اور خوبصورت نک، اور یوری بھی تھا. لاسٹ میں آتی ہے ایک ایسی لڑکی جسے باقی گروپ کے لوگ نہیں جانتے تھے. اس کا نام ایش تھا. یہ سارے اپنا سفر ایک بلیک گاڑی میں بیٹھ کر شروع کرتے ہیں. کئی 1000 کلومیٹر کا جنگل تھا جو انہیں پار کرنا تھا. ان کا سفر کافی لمبا اور تھکا دینے والا تھا، مگر یہ سارے بہت خوش تھے اور اس سفر کو بہت انجوائے کر رہے تھے. تبھی انہیں خیال آتا ہے کہ انہیں ایک تصویر لینی چاہیے، اور یہ سارے مل کر ایک تصویر کے لیے پوز دیتے ہیں. ابھی تصویر بنی بھی نہیں تھی کہ کوئی چیز گاڑی سے آ کر ٹکراتی ہے. سب تھوڑی دیر کے لیے ہوش کھو بیٹھے تھے. یوری کے منہ سے خون آ رہا تھا. گیگ کے ہاتھ میں شیشہ گھس چکا تھا اور وہ چیخ چلا رہا تھا. الولا کی ٹانگ سیٹ کے نیچے پھنس چکی تھی اور اس میں ایک لوہے کا ٹکڑا گھس چکا تھا. ایلیا کا فیس بھی خراشوں سے بھرا پڑا تھا. ان کی گاڑی سے ٹکرانے والا ہرن تھا جو کہ مارا جا چکا تھا اور ان کی ونڈ سکرین کے اوپر ہی پڑا تھا. مگر ان کی گاڑی سے ہرن ٹکرانے سے پہلے کچھ عجیب سی کلک ہوئی تھی اور سین بدلتے ہوئے دکھائے گئے تھے. یہ سب کیا تھا وہ ہم تھوڑی دیر میں جان پائیں گے. اب یہ سارے پریشان تھے، بار بار سگنل دیکھ رہے تھے لیکن نیٹ ورک کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. تب یوری کہتا ہے ہم ٹھنڈ اور برف باری کی وجہ سے یہی مارے جائیں گے. ہم یہاں بیٹھ کر زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی کو ہائی وے پر جانا چاہیے اور ہیلپ لینی چاہیے. تبھی الولا کو کوئی آدمی درختوں کے درمیان کھڑا نظر آتا ہے تو وہ مدد کے لیے سے پکارتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے. باقی کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا. اب یوری ہی ہمت کرتا ہے اور وہ مدد لانے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ان سے الگ ہو جاتا ہے. باقی لوگ سمجھ گئے تھے کہ قریب ہی کوئی آبادی یا گھر وغیرہ ہے تو وہ بھی مدد لانے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب بس گاڑی میں رہ گئے تھے ایلیا اور الولا. باقی لوگوں کو جلد ہی ایک گھر نظر آتا ہے. اس گھر کے باہر میٹ اور جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی کریپی لگ رہی تھی. اندر جانے پر ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. سب اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سیل کی لائٹ سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. تبھی نک کو لائٹ کا سوئچ نظر آ جاتا ہے اور وہ اسے آن کر دیتا ہے. میری کو جلد ہی ایک فرسٹ ایڈ کا ڈبہ نظر آتا ہے اور وہ گیگ کی پٹی کرنے لگ جاتی ہے.
ऐश सबसे अलग होकर इधर उधर कोई चीज ढूंढ रही थी। फिर इसे एक बंद रूम नजर आता है जिसे ये बहुत इजीली एक की ढूंढकर खोल भी लेती है। दूसरी तरफ निक को घूमते घूमते एक कैमरा मिलता है जो काफी पुराने जमाने का था। वो इसे लेकर गैग और मोटी मैरी की तस्वीर लेने की कोशिश करता है, मगर वो कैमरे का बटन दबा भी देता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ ऐश ने उस रूम में लाइट्स को ऑन कर दिया था और सामने का नजारा बहुत ही हैरान कर देने वाला था, क्योंकि दीवार सारी तस्वीरों से भरी हुई थी जिसमें भयानक मौतों की पिक्चर्स भी ली गई थी। तब ऐश के चेहरे पर हैरानी के साथ थोड़ा सा डर भी नजर आ रहा था, क्योंकि इनकी गाड़ी की पिक्चर भी हिरन से टकराते हुए ली गई थी। इतने तक मैरी भी आ चुकी थी, वो भी ये सब देखकर हैरान थी। मैरी और ऐश भी वहाँ से निकलकर निक के पास आ जाते हैं, जो कि हंसी मजाक कर रहा था, और गैग भी माहौल को चिल करने के लिए एक पोज बनाने को तैयार हो जाता है और फिर तस्वीर ले ली जाती है। मगर तस्वीर अभी प्रिंट नहीं हुई थी। गैग और मैरी एलिया लोगों की मदद के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। ऐश कहती है, ये बहुत भयानक है, तुम्हें देखना चाहिए, और वो निक को वो तस्वीर दिखा देती है। निक ने कहा, मैंने तो ऐसी तस्वीर नहीं ली थी। अब जंगल का सीन दिखाया जाता है। रास्ते में चलते चलते गैग लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और शिकारियों के लगाए हुए फंदे में इसकी गर्दन जिस्म से तकरीबन जुदा हो जाती है। मैरी इसकी हेल्प के लिए इसे खींचती है तो धड़ उसके हाथों में रह जाता है। वो जोर से चीख मारती है। ये चीख निक और एलिया लोगों ने भी सुन ली थी। अलूला हिल भी नहीं सकती थी, लेकिन वो एलिया को कहती, जो मेरी बहन की हेल्प करो, वो मुश्किल में है। इधर निक और ऐश भी गैग की लाश तक पहुंच चुके थे। मैरी वहां पर नहीं थी। वो सबको ढूंढते हुए घर तक पहुंच चुकी थी। अपना खून साफ करती है और फिर दुखी होकर वहीं टेबल पर बैठ जाती है। ऐश लाश को देखकर वापस आ चुकी थी और वो गैग की मौत पर दुख जताते हुए मैरी को गले से लगाती है। निक ये खबर एलिया लोगों को देना चाहता था और वो उधर बढ़ रहा था। तभी इसे एलिया मिल जाता है। वो इसे गैग के बारे में बताता है। ऐश मैरी को वहीं छोड़कर फिर से कोई चीज तलाश करने अगले रूम में जा चुकी थी और फिर उसे एक चाबी मिलती है। वो एक लॉकर की थी। वो उसे ओपन करती है और अंदर से उसे एक वीडियो मिलती है। जब वो उसे चलाती है तो एक साइंटिस्ट और उसकी वाइफ नजर आते हैं। वो लेडी बात को बढ़ाते हुए कहती है, हम माइकल ग्रेहर की द्वारा छोड़ी गई एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आज हम पहला स्टेप लेने वाले हैं। हम चूहे पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और फिर वो उसी कैमरे से चूहे की एक पिक्चर ले लेते हैं। फिर वीडियो में दिखाते हैं कि वाइफ का नाम ओहा था और प्रोफेसर का नाम अभियासो था। वो उसकी असिस्टेंट भी थी और वाइफ भी थी कि तभी एक आदमी इन पर हमला कर देता है। वो आदमी इनसे लड़ भी रहा था और कह रहा था, तुमने उसे मार डाला और उसका प्रोजेक्ट और कैमरा चोरी कर लिया। मुझे तुम्हारी वजह से 15 साल जेल में बिताने पड़े। इन दोनों को वो नया आने वाला मार डालता है और उसी वक्त मैरी भी रूम में आ चुकी थी। तभी निक लोग भी लौट आते हैं। मैरी इनके पास जाती है और कहती है, एलिया तुम्हें ये चीज देखनी चाहिए, और उसका हाथ पकड़कर दोबारा रूम में ले आती है। मगर दूसरी तरफ ऐश ने जानबूझकर वो सब कुछ तोड़ दिया था ताकि कोई वीडियो देख ना सके। ऐसा उसने क्यों किया था ये आगे चलकर पता चलेगा। एलिया और बाकी वो तस्वीरें दोबारा से देखते हैं और अपनी गाड़ी की पिक्चर देखकर तो उनकी परेशानी दुगनी हो चुकी थी। मैरी फिर इसे कैमरे के बारे में भी बताती है। तभी दरवाजे को कोई धक्का देने लगता है। डोर पर कोई था। सब उधर देख रहे थे। मैरी के हाथ में कैमरा था और तभी क्लिक की आवाज आती है। लाइट ने सबको परेशान कर दिया। मैरी कहती है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। सबको फिक्र थी कि कहीं उनकी पिक्चर तो नहीं ली गई, मगर मैरी की ही पिक्चर ली गई थी, क्योंकि सामने ही शीशा था जिसमें मैरी का अक्स नजर आ रहा था। एक मकड़ी उसी वक्त एलिया देखता है जो कि मैरी के कंधे पर गिरी थी। मैरी को जैसे ही वो बताता है तो मैरी डरकर चीखती है और वो मकड़ी मैरी के मुंह में चली जाती है। वो इसे निकालने की कोशिश करती है, मगर जहरीली मकड़ी ने अपना काम कर दिया और देखते ही देखते इनकी आंखों के सामने वो मारी जाती है। तभी कैमरे की पिक्चर भी साफ हो जाती है। सेम वही कुछ था जो कि मैरी के साथ हो चुका था।
अब वो मैरी को वहाँ छोड़कर अलूला की हेल्प के लिए निकल खड़े होते हैं। ऐश की नजर थोड़ी दूर जाकर जंगली कुत्तों पर पड़ती है। मे भी गैग के खून की महक उन्हें यहाँ तक खींच लाई थी। अब ये सारे दौड़ते हैं, कुत्ते भी इनके पीछे थे। ये जैसे ही गाड़ी में घुसते हैं, कुत्ते गाड़ी की छत पर चढ़ जाते हैं और फिर विंड स्क्रीन पर बैठकर वो हिरन को खाने लगते हैं। गाड़ी की विंड स्क्रीन पहले ही हिरन का वजन सह चुकी थी, अब कुत्ते भी थे और वो टूटी हुई भी थी। इन्होंने पैरों से उसको संभाला हुआ था, मगर कब तक ये अपने पैरों से विंड स्क्रीन को थाम सकते थे। अब ये 1 बाय 1 करके गाड़ी से निकलकर घर की तरफ भागने लगते और आखिर में निक भी कामयाब हो जाता है बाहर निकलने में। हैरत की बात ये थी कि अलूला गाड़ी में भी नहीं थी और इन्हें रास्ते में भी नहीं मिली थी। अब दोबारा से घर का सीन दिखाया जाता है। अलूला घर पहुंच चुकी थी। मैरी की लाश से लिपटकर वो रो रही थी। वो एलिया और इन्हें ही मैरी की मौत का जिम्मेदार समझती है। इसे सब समझाते हैं और कैमरा भी दिखाते हैं, मगर वो ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं थी। फिर न जाने उसे क्या ख्याल आता है कि वो कमीनगी दिखाते हुए एलिया की ही पिक्चर क्लिक करती है। एलिया तो गुस्से से पागल होकर इसे गालियां देने लगता है। फिर वो इनसे पूछता है, क्या मैं बच पाऊंगा? क्या मैं तस्वीर को फाड़ दूं तो ये सब टल जाएगा? अगर मैं तस्वीर को जला दूं तो ये कर्ज टूट जाएगा? बताओ ना, बताओ। और फिर न जाने उसे क्या होता है। वो घर से बाहर को भागता है और इसे कुत्ते अगले ही लम्हे दबोच लेते हैं। इसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज रहा था। सब दूर खड़े एलिया को देख रहे थे। फिर निक भागता है और अंदर से कैमरा ले आता है और कुत्तों की तस्वीर बना ले, मगर उतने तक इतनी देर हो चुकी थी कि एलिया खत्म हो चुका था। और फिर खंबा गिरता है और करंट से कुत्ते भी मारे जाते हैं, जैसा कि तस्वीर में था। निक कहता है, हमने कर दिखाया, मगर अब इस सब का क्या फायदा था? अब ये सिर्फ 3 बज चुके थे। कैमरा एक एक करके इनको मार रहा था। निक कहता है, हमें सुबह ही इस घर से हर हाल में निकलना होगा। फिर खुद ही कहता है कि यहाँ तो कई 100 किलोमीटर तक कोई आबादी भी नहीं, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ऐश कहती है, मैंने यहाँ पर मछली पकड़ने का सामान देखा है, तो जरूर कहीं झील भी है और फिर कश्ती तो होगी होगी। अब ये तीनों आराम करने लगते हैं और कैमरा दोनों लड़कियों के दरमियान में रखा था। तभी निक के फेस पर लाइट लगती है। निक गुस्से में आकर पूछता है, ये किसने किया? बताओ, तुम में से किसने ऐसा किया? क्या ये तस्वीर मेरी है? और फिर वो दोनों लड़कियां पिक्चर देखती हैं तो उनके चेहरे पर खौफ हम देख सकते हैं। तभी निक भी पिक्चर देखता है और उसके तो होश ठिकाने आ जाते हैं। निक गुस्से में आकर पूछता है कि ये तुम में से किसने किया? तो वो दोनों ना में सर हिलाती हैं। वो डरकर पिछले दरवाजे की तरफ भागता है और फिर दर्द भरी आवाज आती है जब ये दोनों अंधेरे में आगे बढ़ती हैं, क्योंकि खंबे के गिरने से लाइट तो जा चुकी थी। तो डोर पर लगा हिरन का सींग निक की आंख से होते हुए इसके दिमाग के अंदर धंस चुका था। जैसा कि फोटो में था, बिल्कुल सेम उसे वही मौत मिली थी और इतनी भयानक कि उसकी तड़प तड़प कर जान निकली थी। अब टेबल पर 2 ही थी, अलूला और ऐश। अलूला कहती है, तुम कौन हो? कहाँ से हमारे ग्रुप में आई? बस हम तुमसे ही तो अनजान थे। ऐश भी आगे से कहती है, तुम कैसे ठीक हो गए? इतनी जल्दी कैसे चल फिर लिया तुमने? जरा भी नहीं लगता कि तुम तो जख्मी थी और तुम्हारे पास तो रीजन भी था निक और मुझे मारने का। मैरी। तभी अलूला कहती है, तुम मुझे पानी पिला सकती हो? क्योंकि पानी बिल्कुल तुम्हारे पास ही तो रखा है। वो उठती है। जब वो पानी डालने लगती है तो अलूला उसके सर पर जोरदार वार करती है और वो बेहोश हो जाती है। कैमरा उठाकर बाहर को भागती है। सुबह तो वैसे भी हो चुकी थी। पीछे से ऐश को भी होश आने लगता है। खुशकिस्मती से कश्ती तक पहुंच चुकी थी। इसे खोलने लगती है। तभी कोई उस पर भी वार करता है और वो अपना होश खो बैठती है। वो एक बूढ़ा आदमी था जो कहता है, तुम ये कैमरा लेकर कहाँ तक जा सकती थी? मैंने इसे कई बार खत्म करने की कोशिश की, मगर ये दुनिया की बेशकीमती और अनोखी चीज थी। भला मैं इसे कैसे खत्म कर पाता? तुम भी हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया छोटी लड़की, अब तुम्हें वतन के लिए जान देना होगी। और फिर वो कहता है, ऐश मेरी ही बेटी है, वो तुम जैसे लोगों को यहाँ पर घेर कर लाती है। वहाँ पर ऐश भी आ चुकी थी और वो कैमरा उठा लेती है। बूढ़ा कहता है, लो ये कैमरा मुझे दो। तो वो कहती है, तुम झूठे थे, तुमने कहा था मेरे माँ बाप एक प्रयोग के द्वारा मारे गए थे, मगर तुमने ये नहीं बताया कि उन्हें तुमने ही मार डाला था। क्यों?
क्यों किया तुमने ऐसे? बूढ़ा कहता है, तुम्हारे माँ बाप ने सब हथिया लिया, ग्रेहर के इन्वेंशन को चुरा लिया था, मीन्स उस कैमरे को, और माइकल भी उसी की वजह से मारा गया था। सजा मुझे मिली, मेरा ओहदा भी चला गया और 15 साल मैंने जेल में काटे। इस इन्वेंशन को चुराने की सजा तो मौत ही बनती थी, जो कि मैंने उसे दी। वो यही डिजर्व करता था। ऐश उसी वक्त इसकी पिक्चर भी क्लिक करती है। बूढ़ा कहता है, तुम जानवर हो, काश उस दिन मैंने तुम पर रहम ना खाया होता और तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप के साथ मार डाला होता। तभी पीछे से अलूला वार करके बूढ़े की जान ले लेती है और फोटो भी साफ होकर सामने आ चुकी थी। ऐश के फेस पर उसे देखकर बेरहम सी हंसी आ जाती है। अलूला कहती है, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे लिए से मार डाला, तुम्हारी मदद की। तो ऐश कहती है, मैं अपनी पढ़ाई में बहुत आगे थी, जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं किया और ना ही अपना काम कभी अधूरा छोड़ा, तो आज कैसे अधूरा छोड़ दूं? तभी ऐश पिक्चर लेने की कोशिश करती है, मगर कैमरे का रोल खत्म हो चुका था, तो वो उसी वक्त घर की तरफ दौड़ती है। यही वक्त था अलूला के पास। वो कश्ती को सेट करती है और बैठकर दूर जाने की कोशिश करती है। फिर ऐश को घर में रोल मिल चुका था, वो इसे कैमरे में डालती है और दोबारा वापस आती है। अलूला समझ रही थी कि वो दूर आ चुकी है, मे बी पिक्चर ना ली जा सके, मगर ऐश इसकी फोटो ले लेती है। अभी फोटो साफ होकर उभरी नहीं थी। जब हम देखते हैं तो तस्वीर में अलूला को डूबते हुए पानी में दिखाया गया था और फिर दूर तक ऐश की नजर जाती है। ना अब वहाँ पर कश्ती थी और ना ही अलूला, दोनों ही डूब चुके थे। सारे ग्रुप का काम तमाम हो चुका था, बची थी तो ऐश। थोड़ी देर में रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी थी। ऑफिसर बहुत अच्छे से इससे पेश आ रहा था। ऐश सीढ़ी पर बेचारी बनी बैठी थी और वो इसे दिलासा दे रहा था, क्योंकि सारे दोस्त जो इसके मारे गए थे। कैमरा अब भी ऐश की गोद में था। तभी यूरी भी आता है, क्योंकि वो हाईवे पर पहुंचने में कामयाब रहा था और ये टीम भी तो वही लेकर आया था। वो इसे कहते हैं, क्या कैमरा तुम्हारा है, ये चलता है? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहते हैं, एक तस्वीर हो जाए। तब ऐश कहती है, तुम दोनों की तस्वीर हो जाए। ऑफिसर कहता है, हम दोनों की ही क्यों, सारे ग्रुप ही की एक तस्वीर क्यों न हो जाए। और फिर वो अपनी टीम को बुलाता है एक ग्रुप फोटो लेने के लिए। ऐश का चेहरा खिल उठा था और वो इनकी एक पिक्चर लेती है, ये कहते हुए कि स्माइल करें, और कैमरे की एक क्लिक के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।